जब आंखें खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, जब आंखें बंद हो तो यादें हिंदुस्तान की हो। हम मर भी जाएं तो कोई गम नहीं, लेकिन मरते वक्त मिट्टी हिंदुस्तान की हो। स्वागत है सबका रेन लवर शो के एक स्पेशल एपिसोड में। मैं हूं आपका होस्ट रेन लवर। ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की, ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना। और इसी हौसले के साथ आज के शो की शुरुआत करते हैं। सो लिसनर्स, वी हैव गॉट अ वेरी स्पेशल गेस्ट जॉइनिंग अस टुडे स्ट्रेट फ्रॉम उत्तर प्रदेश, इंडिया। He is a guitarist, a singer, an entrepreneur. He loves literature and doing a big contribution towards the children's education by opening a school based on CBSE curriculum. And his name is Vishal. Hey Vishal, thank you so much for joining us today. And how are you doing? Yeah, I'm totally good, man. How are you? I'm doing absolutely fine. And thank you so much, Vishal, for joining us today. So, Vishal, tell us something about yourself. Uh, Basically, I'm a boy who was born in a very small town in Jharkhand, separated from Bihar. Like, I was born in Bihar, but eventually it was separated into two parts. One was Jharkhand and one was Bihar. And I got my schooling from I was fortunate enough to have my schooling from St. Xavier's, Sahibganj, Jharkhand. And then I moved on to Kolkata for my graduations, and then I pursued my education and got to see the real world outside my hometown. To be very honest, I'm a very realistic person, and I believe in working for your success. To be very straight, it's the life which you recognize and the life which give you success. So that is what I have been following my whole life. Wow, that's really amazing, Vishal, and we are like so impressed, like getting know these inside story of your life, like how you started and like still right now you're moving forward. Or so, what is the story behind? So Vishal, as like you've been to Calcutta, you pursued your like the further education hota hai, and suddenly like from Calcutta to back to your hometown, like what is the reason behind it? मैंने कलकत्ता से ग्रेजुएशन किया, जिसको हम लोग कोलकाता भी कह सकते हैं। तो जैसे कि मैंने झारखंड से स्कूलिंग किया, साहिबगंज में मैं पैदा हुआ, एंड देन आई वेंट आउट लाइक आफ्टर अ 14 इयर्स ऑफ अ वेरी लॉन्ग टाइम। मैं बाहर गया और मैंने देखा कि हमारे जो होम टाउन के बच्चे हैं, जैसे कि मैं था, तो हम लोग बेसिकली एक्सपोज नहीं थे। वी वर नॉट एक्सपोज टू द आउटसाइड वर्ल्ड। When I went outside, I realized that we lack communication skills, we lack confidence, we lack the modern exposure. So I went into my graduations, I did my graduations, and then I went into my job. And then I realized that I need to do something about the students and about the young generation which lies back into my hometown. Because I was into marketing, I met a lot of influential people in the corporate sector. So that is the basic reason why I quit my job and I came back to my hometown, and I started working with the young generation in my hometown. I started to teach them, basically because I am from commerce background. So I started basically from 10th and 12th. मैंने 10वीं और 12वीं के बच्चों को मैंने पढ़ाना शुरू किया। बेसिकली मैं कॉमर्स में हूँ, तो मैंने कॉमर्स से ही शुरुआत की मैंने। और जैसे कि कह सकते हो कि आप सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो मैंने 5 दिन कॉमर्स पढ़ाया और 2 दिन मैंने बाकी सब चीज़ों पे फोकस किया, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल्स एंड द वे यू प्रेजेंट योरसेल्फ, use your, because knowledge can be presented in two ways. One is basically a theoretical way which you study in books, and the second is a practical way which you present in market. Because मैं सीख कर आया था, तो मैंने बच्चों को वही प्रोजेक्ट किया, क्योंकि मैंने रियलाइज किया कि भले ही हम स्कूल से 90% लेकर निकले, पर हमारे स्कूल्स जो हमारे होम टाउन में है वो नहीं दे रहे जो बाहर की कंपनीज और बाहर के ऑर्गेनाइजेशन हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं।
तो मैंने वहीं से शुरुआत की। मैंने बहुत बेस लेवल से शुरुआत किया। मैंने बच्चों को करिकुलम से शुरुआत किया मैंने पढ़ाना, और मैंने मार्केटिंग पे एंड किया, जहाँ मैं बच्चों को ये बता रहा था कि आप अपने बुक से जो नॉलेज प्राप्त कर रहे हो, बिकॉज यू वंस यू स्टेप इनटू द आउटसाइड वर्ल्ड, द बुकिश नॉलेज इज नॉट जस्ट एनफ टू सर्वाइव देयर। So that is when I realized, that I should go and give something else which I have acquired from the outside world. So that is what I would say. Wow, that's really amazing, Vishal. So, according to you, like कि जो book की knowledge होती है, like जो 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 मतलब एक literature knowledge होता है, so basically that is not something मतलब कि वो ही complete है. So, No. according to you, yeah. So, according to students को एक out of the world की भी एक knowledge होनी चाहिए, which is like you are trying to give it to your school students, correct? Yes, yes, yes. Wow, that's really amazing. So, what do you think, Vishal, like according to, हमारी जो अभी current situation है हमारे country का, so what all the things needs to be like, more like जैसे implement करना चाहिए, और like कई चीजें हैं जिसको थोड़ा सा more step in करना चाहिए. It's like more of कि कुछ नए entrepreneurs को like, we need to give a birth to them basically. So, what is your basic thought process on that? I will be very specific about it. मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। जब जैसे कि हम बात करें, अगर श्रीनिवास रामानुजन मैथ्स का बहुत ही बड़ा ज्ञाता था, पर उसके ऐसे कितने बच्चे हैं जो बहुत कुछ में बहुत आगे, कोई मैथ्स में बहुत आगे, कोई साइंस में बहुत आगे है, कोई इंग्लिश में बहुत आगे है, पर उसे वो एक्सपोजर नहीं मिल रहा। हमारे ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो ऐसे छोटे से जगहों में पैदा लेते हैं, झारखंड, बिहार, यूपी। झारखंड और बिहार और यूपी तो एक बहुत एवरेज और एक बहुत बड़ा फिगर हो गया। What I'm talking about right now, if you enter in such states and you go into the interiors, you will find a lot of students, a lot of youngsters who are born with different talents, पर उन्हें एक्सपोजर नहीं मिल रहा है। तो ये क्वेश्चन ये होता है कि उनके टैलेंट को कौन आगे बढ़ाएगा। अगर आप उसकी बात करें कन्हैया कुमार की, वो बंदा, क्योंकि मैं कन्हैया कुमार से नहीं मिला हूँ तो मुझे पता नहीं कि उसकी लाइफ क्या है, क्योंकि मैं यंग जनरेशन से बिलोंग करता हूँ, तो मैं भी यंग ट्रेंड को फॉलो करता हूँ। मैंने मूवीज़ देखा और मूवीज़ से मैंने सीखा। ऋतिक रोशन की मूवी आई थी और मैंने उससे सीखा कि उस तरह वो बंदा किस तरह स्ट्रगल किया और किस तरह उसने बच्चों को आगे बढ़ाया। तो बेसिकली ज़रूरत ये है कि हम ग्रास रूट लेवल पे पहुँचें और थोड़ा रिसर्च करें कि किस बच्चे के पास क्या टैलेंट है और उसको उसी लेवल पे आगे बढ़ाएं। जिस बच्चे को मैथ्स में इंटरेस्ट है वो मैथ्स में आगे बढ़े, जिसको साइंस में इंटरेस्ट है वो साइंस में आगे बढ़े, जिसको आर्ट्स में इंटरेस्ट है वो आर्ट्स में आगे बढ़े। जैसे कि मैं खुद अगर अपनी बात करूं तो मैं कॉमर्स से मैंने पढ़ाई की, मैंने बीबीए किया, पर मेरे को लिटरेचर बहुत पसंद था और मुझे बहुत लेट से पता चला कि अगर मैं लिटरेचर पढ़ता हूँ तो मैं मास कॉम में जा सकता हूँ, मैं जर्नलिज्म में जा सकता हूँ, मैं होटल मैनेजमेंट कर सकता हूँ, पर ये मुझे कुछ नहीं पता था। तो बेसिकली क्वेश्चन ऑफ द आवर ये है कि हम बच्चों को क्या देते हैं, आने वाले बच्चों को क्या देते हैं। उन्हें पता चलना चाहिए कि इस लेवल के बाद हमें आगे क्या करना है, क्योंकि यहाँ तक तो सबको पता है कि हमें 10वीं देनी है, हमें 12वीं देनी है, हमें ग्रेजुएट होना है, पर अब दुनिया उतना तक the world is not limited to that level. It has evolved. There are very different options where you can grow and evolve yourself. तो मेरा सोच यही है कि मैं अपने बच्चों को सिर्फ 10th और 12th पास ना कराऊं, बल्कि उनके लिए आगे के रास्तों को खोलूं, ताकि उन्हें ये पता चल सके कि हाँ, 10वीं और 12वीं के बाद भी एक दुनिया है जिसको हम लोग डिस्कवर कर सकते हैं और अपने लिए एक अलग फ्यूचर खड़ा कर सकते हैं। मेरा सोच यहाँ तक सीमित है। That's it. That is what I would sum up to. So, यहाँ पे आपने एक बहुत अच्छी बात कही है कि स्टूडेंट एक बहुत कंफ्यूज्ड हो जाता है बेसिकली। सो उसको आइडिया नहीं रहता कि लाइक वंस ही गो आउट ऑफ द स्कूल तो उसको कौन से स्ट्रीम पे जाना है। बेसिकली वो चीजें स्ट्रीमलाइन होती नहीं है उनके माइंड पे, या क्योंकि जब व्हेन आई वाज इन स्कूल, लाइक जो हमारे 90s के स्टूडेंट जिसको हम कहते हैं, लाइक इवन यू आर वन ऑफ देम। सो एक 10th का बोर्ड कंप्लीट करो, देन मतलब एक 10th का प्रेशर रहता है कि लाइक कि के बोर्ड में अगर अच्छे मार्क्स नहीं है तो मुझे साइंस नहीं मिलेगा, मुझे कॉमर्स नहीं मिलेगा, मुझे आर्ट्स पढ़ना पड़ेगा। सो दैट इज समथिंग कि एक स्टूडेंट, एक बच्चे का माइंड बिल्कुल ब्लॉक्ड रहता
है कि लाइक उसे उन्हें पता नहीं रहता कि मैं किस इसे स्ट्रीम में निशांत जाना है। या मैं इसे ब्लॉग नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि जैसे कि भेड़ का एक झुंड होता है और चरवाहा जैसे चराता है वैसे चलते हैं बच्चे। तो उन्हें एग्जैक्टली पता भी तो चलना चाहिए कि आगे क्या है। जरूरी नहीं कि चरवाहा ने सारा दुनिया देख लिया हो, चरवाहा के आगे भी एक दुनिया है, क्योंकि दुनिया बदल रही है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट। एग्जैक्टली बिकॉज सही बात है, दुनिया बदल रही है, कहाँ से कहाँ पहुंच के आ चुकी है अभी। सो मोर ओवर जो बच्चे होते हैं दे आर द लाइक जो स्कूल स्टूडेंट्स होते हैं, तो दे आर ओनली गोइंग टू बी द शाइनिंग स्टार्स ऑफ आवर कंट्री और फॉर द नेशन और फॉर द वर्ल्ड गोइंग फॉरवर्ड। वी नेवर नो कि कुछ भी कहीं भी पहुंच सकते हैं ये लोग, राइट? सो फॉर ऑल द लिसनर्स, this program is powered by Symphony Originals. Go check out Singer Hub Media on Instagram. Be a part of the ongoing contest and win big. Participate in the contest. Weekly winners might get a chance to be a guest on the Singer Hub Radio. So without any further ado, go and participate in the contest currently going on at Singer Hub Media. Go check it out. So Vishal, according to you, what basically changes you want कि like हमारे सोसाइटी में आने चाहिए and the great initiative which government is taking right now। और कोरोना के आने के बाद तो ऐसे कई सारी चीजें तो बहुत रुक सी गई है, थम सी गई है। So what basically you think कि एक रेवोल्यूशन लाने के लिए एक कंट्री में कोई पार्ट की डेवलपमेंट्स की जरूरत है, और व्हाट डू यू थिंक कि हमारे कंट्री ने कितनी चीजें अचीव कर ली है ऑलरेडी? आई वुड बी वेरी अपोलोजेटिक व्हेन आई से कि छोटी मुंह से बड़ी बात शोभा नहीं देती। तो मेरा मुंह बहुत ही छोटा है, पर मैं बहुत बड़ी बातें करूंगा अभी कि मुझे लगता है कि थोड़ा अपग्रेडेशन होना चाहिए एक बार। मुझे लगता है कि हमें बच्चों को सिर्फ ये नहीं बताना चाहिए कि बेटा ये मत करो, बेटा वो मत करो, पर हमें बताना चाहिए कि बेटा आप ये करो, बेटा आप ये करो। इंटरनेट इज वेरी लाइक टॉक्सिक। सब कहते हैं इंटरनेट बहुत टॉक्सिक है, पर इंटरनेट पे और भी बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप बच्चों को बताओ, आप एक फिल्टर सेट करो कि बच्चों को कहाँ जाना है, बच्चों को कहाँ नहीं जाना है। जैसे कि आप रियल लाइफ में सेट करते हो कि हाँ बच्चे आप इसके साथ मत खेलो, बच्चे आप उसके साथ मत खेलो, तो आप बच्चे को उसी तरह गाइड करो कि बच्चे आप इस वेबसाइट पे ना जाओ, आप इस वेबसाइट पे जाओ। थोड़ा जाकर देखो कि बाहर में कौन कौन से कॉलेजेस हैं, कौन कौन से स्कूल्स हैं, वो किस तरह के कोर्सेस ऑफर कर रहे हैं। आप अगर 12th में मार्केटिंग पढ़ते हो तो आप आगे जाके एक मार्केटिंग कंपनी में काम कर सकते हो। आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप कर सकते हो। सी आई कैन नॉट बी वेरी स्पेसिफिक इन सच अ वेरी short span of time, but what I can say is we need an upgradation. Really, we need it right now. We need to come up with some upgraded information and upgraded things which are going around, because I am from a very small place, I am from a very backward place, so I would talk like one belongs from such place. तो मुझे लगता है कि मेरे जगह के बच्चों को, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, वहाँ के बच्चों को थोड़े बाहर के बारे में बताना चाहिए। सी आई विल बी वेरी स्पेसिफिक टू थिंग्स कि इंटरनेट सब कुछ दिखा दे रहा है, पर इंटरनेट फिल्टर नहीं कर रहा है। फिल्टर करना उनके हाथ में है जो इंटरनेट अवेलेबल करवा रहे हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट थोड़ा कर सकता है, थोड़े माँ बाप भी कर सकते हैं, थोड़े वो बच्चे खुद कर सकते हैं। सो माई basically one specific point which I would like to specify on is कि we need to expose our children to something which is very productive and very developing from the outside world into this enclosed space where we are trapped. I hope this makes some sense. एग्जैक्टली बहुत अच्छी बात कही है विशाल आपने, दैट वी नीड टू गिव एन एक्सपोजर टू द स्टूडेंट्स वेयरइन देखो चीजें हर चीज सही होती है और हर चीज गलत भी नहीं होती है, और हर चीज गलत होती है और हर चीज सही भी नहीं होती, मतलब काइंड ऑफ दैट। सो इंटरनेट एक बहुत अच्छा सोर्स है वेयरइन पीपल कैन फाइंड ऑल द एक्सवाइजेड इंफॉर्मेशन ओवर द नेट, बट कई चीजें अगर अच्छी होती है तो हर कहीं ना कहीं पे उसका एक ड्रॉबैक भी होता है। सो देयर आर सर्टेन थिंग्स जिसको हम होल्ड कर सकते हैं, एक स्टूडेंट के माइंड को हम चेंज कर सकते हैं उस चीज पे। सो यस, वी कैन मॉडिफाई दैट। यस, वी कैन मॉडिफाई दैट, करेक्ट। सो विशाल, we are going ahead with the conversation, but before that
Coming up next is Union Minister Shri Prakash Javadekar released patriotic song Watan, produced by Doordarshan to mark the occasion of Independence Day. The song pays tribute to New Delhi. It highlights several path-breaking initiatives of the government, including the determination and visions behind the recent successful launch of Chandrayaan-2. The song also pays tribute to the bravery and valor of our armed forces and the martyrs of the country. So, sung by Bollywood singer Shri Javed Ali, penned by lyricist Shri Alok Srivastav, and musically composed by Shri Dushyant. And this special song has been produced by Doordarshan Prasar Bharati. So, tune in. माथे पे तेरे चांद का टीका लगाएंगे, आँखों में तेरी ख्वाब के तारे सजाएंगे। माथे पे तेरे चांद का टीका लगाएंगे, आँखों में तेरी ख्वाब के तारे सजाएंगे, होठों पे तेरे प्यार के नगमे खिलाएंगे। तू देखना वतन तुझे कैसा सजाएंगे, तू देखना वतन तुझे कैसा सजाएंगे, तू देखना वतन तुझे कैसा सजाएंगे, सजाएंगे, सजाएंगे। सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्य श्यामलां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। कदमों पे तेरे साथ गगन हम झुकाएंगे, कांधे पे तेरे जीत का परचम सजाएंगे, गलों पे तेरे शौर्य की लाली रचाएंगे। तू देखना वतन तुझे कैसा सजाएंगे, तू देखना वतन तुझे कैसा सजाएंगे। अब तक जो ना हुआ है वो अब कर दिखाएंगे, आँखों पे तेरी दूर का चश्मा लगाएंगे, सारी हदों के पार तुझे हम दिखाएंगे। तू देखना वतन तुझे कैसा सजाएंगे, तू देखना वतन तुझे कैसा सजाएंगे। मिट्टी का तेरी मिट के भी कर्जा चुकाएंगे, मस्तक ये तेरा गर्व से ऊंचा उठाएंगे, आगे ही आगे हम तुझे ऐसा बढ़ाएंगे।
तुझे कैसा सजाएंगे, तू देखना वतन तुझे कैसा सजाएंगे, सजाएंगे, So that was a fabulous song sung by Shri Javed Ali, and amazing music, and मतलब बहुत बहुत अच्छा बनाया है ये गाना, और इनफैक्ट a huge respect to the Union Minister Shri Prakash Javadkar for releasing a kind of a song. So Vishal, as you have mentioned that you are a guitarist, जो आपकी hobby है, and also you know you sing. So what about like मतलब ये hobby रह गई कि, और you tried कि थोड़ा सा step in भी करें इन चीजों पे भी? अगर ऑनेस्टली बोलूं तो मैं एक बहुत मिडिल क्लास फैमिली से हूं, तो जब मैंने म्यूजिक का ये हॉबी डेवलप किया तो मेरे परिवार वालों ने एक्सेप्ट नहीं किया, उन्हें लगा कि मैं बर्बाद हो रहा हूँ जैसे कि हर मिडिल क्लास फैमिली की सोच होती है। तो मैंने इस पे ज़्यादा कोई प्रेशराइज नहीं किया, आई डिडंट गो अ लॉट डीप इनटू इट, बट यस आई डेवलप्ड इट इन द बैक ऑफ माय हेड and I started practicing. I used to play my guitar on my own, and I'm not too much into my guitar. No, I don't play that much, but yes, music still inspires me. And tomorrow we have 15th of August, the Independence Day of our country. So I would be glad enough to share a few lines written by, I seriously don't remember the name of the lyricist, but I remember the name of the movie. So if you want me, I can recite a few lines from that song. Please, Vishal, we are honored to listen to you. Please go ahead. Okay, so this song is from a very famous movie in which Ajay Devgan was the starring actor, and the movie's name is The Legend of Bhagat Singh, and this song has been sung by Sukhwinder Singh, and it's like a message from those people who were a part of the independence struggle, and it's a very emotional song. So by your permission, can I recite a few lines? प्लीज विशाल, परमिशन की जरूरत ही नहीं है, यो मतलब आपको तो गाना ही पड़ेगा, लाइक और हमारे सारे लिसनर्स, एंड दिस सॉन्ग इज लाइक स्पेशली लाइक एक इनसाइड स्टोरी, एंड वी आर नाउ विद विशाल विद अस, सो प्योरली डेडिकेटेड टू ऑल आवर लिसनर्स. सो या विशाल, प्लीज गो अहेड. So here goes nothing for the country and for the freedom fighters. कसम तुमको वतन वालों, कभी मायूस मत होना, मनाना जश्न आजादी न मेरे वास्ते रोना, निगाहें मौत से भी हम मिलाने से नहीं डरते, देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू, देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू. These lines are dedicated to everyone in India and the ones who are really enjoying the Independence Day and the independence which the freedom fighters have given to us in inheritance. Thank you so much. Wow, that was really amazing, Vishal, and thank you so much for your participation. और मतलब, and you have a very beautiful voice, Vishal. I really appreciate your voice. Like you have a fabulous voice. So Vishal, like you मतलब ये गाना सीखा है, और it's like something that it is like मतलब बचपन से ही you are into like singing, or like you're totally professional basically. So मेरे को ऐसी feel आई है. Yeah. I don't think so that I'm a professional, because I'll be very honest. Professional किससे कहते हैं? Because I don't think कि
प्रेमचंद ने कहीं लिखना सीखा। उसने समाज में रहा और समाज को देखकर उसने लिखना सीखा। तो मुझे नहीं लगता कि किसी को एक्सप्रेस करने के लिए, बिकॉज भगत सिंह वाज नॉट अ बॉर्न नेशनलिस्ट और अ बॉर्न रिवॉल्यूशनिस्ट और अ बॉर्न सिंगर। ये उसके अंदर के जज्बात थे, उसके अंदर के बात थे और उसकी सोच थी जो पन्नों पे और आवाज में उभर के बाहर आई थी। तो मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि हर कोई गा सकता है, हर कोई लिख सकता है और हर कोई एक्सप्रेस कर सकता है। बस अपने अंदर झांको, अपने आप को सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करो और अंदर से आवाज आएगी। मेरे हिसाब से मेरे को ऐसा लगता है। वाह, बहुत बहुत अच्छी सोच है विशाल आपकी। लाइक बहुत बहुत ही अच्छी और बहुत बहुत मतलब कहते हैं ना वो, इट्स अ हाई लेवल थिंकिंग। और ऐसी सोच अगर हर एक इंसान में आ जाए तो मतलब दुनिया तो बदल जानी है बिल्कुल। एक ही दिन में बदल जाएगी, नॉट इवन दिन, घंटे में बदल जानी है। सो हम चाहते हैं कि whosoever is listening to this amazing talk, कुछ चीजें इंप्लीमेंट कीजिए अपनी लाइफ में, कुछ नेगेटिविटी को हटाइए, कुछ पॉजिटिव रेस को आने दीजिए, एंड द वर्ल्ड विल बी अ बेटर प्लेस टू लिव। सो इसी के साथ वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ द शो, and this program is powered by Symphony Originals, and do go and check out Singer Hub Media, link in the description. Also विशाल के सोशल मीडिया हैंडल्स हमारे डिस्क्रिप्शन पे है, go check out, follow Vishal, he is very super active you know on his social medias, and उनके नए नए content, नए गाने, नए you know the tunings, whatever he do, he's a amazing guitar player, so he keep on posting that, so do follow him, keep on like you know एक updated रहिए। And if you have any questions that you want to ask Vishal, then you can also message him on his socials, and definitely Vishal is gonna reply you and post you, and also अगर आपके questions ज़्यादा रहे तो again we're gonna call Vishal on our show, and he is gonna give the answers live to every listeners हमारे शो के जरिए। क्यों विशाल, इतना तो आप कर ही सकते हो हमारे लिए। Obviously, I'm always open for public inquiries. You know, yeah, I'm totally available. Wow, that's great. So Vishal, you must be having a big plan for tomorrow, school में? To be very specific, because it's lockdown, pre-lockdown, past lockdown, I've been through a traumatic stage, and मेरे हिसाब से अगर गवर्नमेंट ने ऐसे इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि कहीं पे भी 5 लोग से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, तो tomorrow my plan is basically I'll be going to the school, and a few of my very responsible staff members are going to be there. We are going to have a very small event where we are going to hoist the flag or hoist the flag, and basically tribute to the people who fought very bravely and with so much of devotion for our country. We are going to pay a small tribute, and we are going to end the day by taking down the flag in the evening. That is all what I have planned for tomorrow. Wow, that's great, Vishal. So मतलब जब गवर्नमेंट ने अलाउ किया कि एटलीस्ट 5 लोग जाएं, एंड यू आर गोइंग विथ योर 5 मोर कोर मेंबर ऑफ योर स्कूल फैमिली, सो दैट इज समथिंग रियली अमेजिंग। सो आई होप कि you're gonna have a wonderful time together, और बहुत सारे फोटोज क्लिक कीजिए वहां पे, डू पोस्ट इट ऑन योर सोशल्स। हमारे लिसनर्स जा रहे हैं आपके सोशल्स को टारगेट करने के लिए। सो कमिंग अप टू द एंड, या सो विशाल, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस फॉर टुडे, एंड आशा करते हैं कि लाइक आपका flag hosting, your Independence Day, in fact everyone's Independence Day, हम घर पे रह के सेलिब्रेट करें और ज़्यादा भीड़ ना जमा करें कहीं पे। बेसिकली कोरोना वायरस का टाइम है, और जस्ट सेफ रहें इस चीज़ को लेके। एंड इवन आई विश यू अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू यू एंड टू योर फैमिली। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट विशाल, बहुत एक अच्छी सी और एक खबर आई है जो मैं पूछना रह गया मेरे से, that you have a very special guest in your family, like you know your mom, so tell us something about your mom as well. मैं नास्तिक हूँ, क्योंकि मैंने ना भगवान को देखा ना भगवान को जाना। जब से पैदा लिया मैंने बस अपनी माँ को देखा है, और ये जिंदगी उनकी दी हुई है, ये ज्ञान और ये दूरदर्शिता, or whatever you can say, because you know we are very linguistic, we believe in languages,
So be it in English, be it in Hindi, be it in Chinese, French, German, any language, mother or God, what you choose depends on you. I choose my mom because I have never seen God. I have never found God anywhere. I believe my mom is the beginning and the end of the world. वाओ, बहुत अच्छा थॉट है आपका. एंड मतलब योर मॉम मस्ट बी वेरी प्राउड टू हैव अ सन लाइक यू. सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे. लिसनर्स, कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है. हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान की शान का है. स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को. और इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं. फिर मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में. तब तक सुनते रहिए और सुनाते रहिए. साइनिंग ऑफ. This program is brought to you by Symphony Music Entertainment Private Limited. Follow us on our socials for exciting updates, behind the show, and much more. Link in the description. Keep tuning.